Hey everyone, so guys, hope you all are good. So guys, I am back with one of the most interesting video of Power BI. So guys, in this video I'm going to explain about one of the most important DAX in Power BI, that is earlier. What is the live example use of earlier DAX expression? So guys, what happens, I was working for one of the healthcare client and I got these issues, like, so I am going to discuss everything about the Power BI project, how Power BI live project is happening. So yeah, so without wasting time, let's move on the data set first. So guys, this is the dummy data set which I have created for better understanding of these queries. So guys, we have a date, name and resident. So this is basically, I am working for one of the healthcare industry. So in the healthcare industry, what is happening, like whenever resident is admitting to any particular hospital, then client is providing some IDs. That ID is called resident ID, and this action code shows like what is the status of each resident on each date. So this is the snapshot type of fact table. Here you can see that, and this shows the name of the patient, and this is the uniqueness ID, and this shows the what is the status, like what is the action taken of on any particular resident at any particular date. तो यहाँ पे देख सकते हो, you can find action date, action code. ठीक है. Now, so client requirement is so let me move to the Power BI and then I will explain betterly. So here I have imported the whole data set in Power BI through this Excel workbook. ठीक है. Now, what is happening here? So client needs admission date, or you can say client needs hierarchy of all the resident, like when any particular resident has been admitted and what is the status at any particular date. ठीक है. तो रिक्वायरमेंट इज दिस. सो अभी यूआई थोड़ा सा डिफरेंट है जो मैं लाइव प्रोजेक्ट में क्लाइंट को डिलीवर कर चुका हूँ, दैट इज़ टोटली डिफरेंट. सो बस इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली कॉन्सेप्ट विच आई कॉन्सेप्ट अप्लाइड एंड व्हाट वाज द प्रॉब्लम. ठीक है. नाउ अभी आप देख सकते हो कि ऑन दिस पर्टिकुलर एक्शन डेट क्या हो रहा है मुझे कि दिस पर्टिकुलर रेसिडेंट आईडी का दिस रेसिडेंट गॉट एडमिटेड ऑन 1 जनवरी 2022. ठीक है. अब यहाँ पे रूम चेंज, आरसी स्टैंड्स फॉर रूम चेंज. ठीक है. वैसे ही बीसी स्टैंड्स फॉर बेड चेंज. मतलब अगर आप लाइव डेटा से इसे रिलेट करोगे तो ऐसा क्या होता है कि आप किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट लिए, तो लेट्स से यू एडमिटेड इन दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटल ऑन 1 जनवरी, और 5 जनवरी को क्या हुआ, आपका रूम चेंज हो गया ड्यू टू एनी सर्कमस्टेंसेस. तो वही स्टेटस यहाँ पे एक तरह से मेंटेन हो रहा है हर एक एम्प्लॉय का, हर एक रेसिडेंट का रिकॉर्ड्स. 10 तारीख को क्या हो रहा है कि वो बंदा का बेड चेंज हो रहा है. ठीक है. पहले रूम चेंज हुआ एंड देन बेड चेंज हो रहा है. फिर 14 को क्या हो रहा है, वो डिस्चार्ज हो रहा है. फिर से क्या हो रहा है, 14 को डिस्चार्ज होकर चला गया, बट 15 को फिर से उसका स्टेटस इज आर ए स्टैंड्स फॉर री एडमिशन. मतलब वो फिर से री एडमिट हो रहा है बंदा. यहाँ पे देख सकते हो 15 को फिर से बंदा री एडमिट हुआ, 15 को री एडमिट हुआ, उसके बाद उसका स्टेटस कुछ नहीं चेंज किया, 27 को वो फिर से डिस्चार्ज हो गया, बट 28 को पुनः फिर से हॉस्पिटल लौट कर आया. ठीक है. एंड देन 28 को हॉस्पिटल लौटा, एंड देन फ्रॉम 28 इट्स नाउ एक्टिव. 28 के बाद मुझे कुछ स्टेटस नहीं मिला है, मतलब इट मीन्स पेशेंट इज एक्टिव इन आवर हॉस्पिटल. ठीक है. नाउ this is not issue, this is the like hierarchy of this particular resident ID, but question is client needs hierarchy of all the employee. ठीक है. but client wants admission date and discharge date as of one particular column. यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है एक्शन कोड के साथ यस कि जहाँ पे मुझे ए दिखे या फिर आर ए दिखे, दिस विल स्टैंड फॉर एडमिशन डेट, बट ही नीड्स एडमिशन डेट एज अ सेपरेट कॉलम. तो मैं ट्राई क्या किया, previously I thought let's create one admission date column in which if action code is this and then this date equals to action date, then give me action date as a admission date. but इस केस में इशू क्या हो रहा है कि एडमिशन डेट जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो हर एक रोज के करस्पॉन्डिंग नहीं है. मतलब 1 जनवरी तो एक जहाँ पे डिस्क्रिप्शन है वहीं पे, जहाँ पे मुझे आरसी डिस्क्रिप्शन है तो वहाँ पे मुझे आरसी नहीं है, या फिर बीसी जहाँ पे है, फिर जिस दिन बंदा डिस्चार्ज हो रहा है उस केस में भी मुझे एडमिशन डेट ही चाहिए, वो ब्लैंक वैल्यूज नहीं चाहिए. ठीक है. तो दिस इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ माई क्लाइंट.
how I handle this situation. So what I did, I created one calculated column. ठीक है, calculated column मैं कैसे create किया, उसके लिए मैं मैं क्या सोचा, किस डायरेक्शन में मैं सोचा कि फर्स्टली मेक पार्टीशन ऑफ ईच रेसिडेंट. ठीक है, तो आई क्रिएटेड पार्टीशन फॉर ईच ऑफ द रेसिडेंट एंड देन आई चूज maximum of admission date. Let me write that DAX and then we'll explain. So let me name this as new admission date. Okay, and then I want calculate here max of this admission date. Okay, so this admission date comma I will filter this table. So I have named this healthcare comma. Now I am going to make a partition on the basis of resident. So this would be for making partition in Power BI you can use earlier function. earlier क्या करेगा, एक partition create करेगा हर एक resident ID के correspondingly. ठीक है, so this but अब क्या होगा, यहाँ पे तो मुझे maximum value हर एक कॉलम में दिखेगा. यहाँ तक अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, इस DAX को ही सिंगल एग्जीक्यूट करूँगा, तो हर एक रेसिडेंट के लिए जो भी मेरा मैक्सिमम होगा वो हर एक कॉलम में वैल्यूज दिख जाएगा. बट आई डोंट नीड दिस. मुझे क्या चाहिए कि 1 जनवरी जो हो बस यहाँ तक दिखे, जहाँ तक वो डिस्चार्ज कर रखा हो, मतलब री एडमिट से पहले तक ही मुझे ये 1 जनवरी चाहिए. अगर हर एक मैं यहाँ पे लेट मी एग्जीक्यूट दिस फर्स्ट. अभी सो फर्स्टली लेट मी जूम दिस लार्जर. यस, सो आई हैव जूम्ड इन. नाउ अभी क्या हो रहा होगा, देखो अभी मैं यहाँ पे किसी लेट मी सेलेक्ट एनी वन पर्टिकुलर रेसिडेंट सो दैट आई कैन एक्सप्लेन बेटर. तो अभी यहाँ पे क्या हो रखा होगा, इस बंदे को आप बात करोगे तो ये बंदा क्या हो रखा है, मुझे एडमिशन डेट एंड लेट मी डू दिस इन असेंडिंग ऑर्डर. यस, अभी क्या हो रहा है कि 1 जनवरी को एडमिट हो रखा था, री एडमिट हुआ 15 को, उसके बाद 28 को फिर से री एडमिट हुआ. तो इस वाले कॉलम में मुझे मैक्सिमम मैंने दिया था, इसलिए मुझे 28 ही दिख रहा है. बट आई डोंट नीड दिस 28. क्यों, एक 28 नहीं, यहाँ तक अगर मुझे कोई भी रो को मैं पिक करूँ, यहाँ से लेकर के इस वाले जहाँ तक डिस्चार्ज मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा वहाँ तक करूँ, तो मुझे 1 जनवरी आना चाहिए ब्रो. ठीक है, अब जैसे ही मैं 15 री एडमिशन हुआ तो री एडमिशन से पहले डिस्चार्ज वाले दिन तक जो री एडमिट वाला डेट हुआ वो चाहिए. आई एम एज्यूमिंग कि यू हैव अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. ठीक है, फिर नेक्स्ट में 28 को री एडमिशन हुआ तो उसके बाद फिर 28 आना चाहिए. ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या किया कि फॉर अवॉइडिंग दिस इशू आई एम गोइंग टू राइट वन मोड फंक्शन इन साइड द DAX एंड sorry not in this in the new addition. Okay, earlier of this healthcare ID. So yeah, and let me write and function and census date, sorry not census date, date healthcare this date. ठीक है, this date should be less than equals to earlier of healthcare date. अब जैसे ही मैं हेल्थ केयर का डेट डाला तो अभी क्या हो रखा होगा कि हेल्थ केयर का जो भी डेट होगा, जो भी पहले अपन बात करते हैं 14 तक, ये 14 तक पहले अगर 1 को देखा तो 1 में मैक्सिमम तो यही दिख रहा था मुझे. बट जैसे ही अगर 14 तक गया तो 14 तक तो उसे मैक्सिमम दिस 1 जनवरी मिल रहा था. बट जैसे ही वो 15 को इंटर मारा, 15 पे उसे मैक्सिमम क्या दिख रहा होगा कि ए 15 एंड देन 1. उस केस में क्या लेगा, मैक्सिमम मतलब कौन सा, 1 या 15 ऑब्वियसली 15. तो इस केस में मुझे क्या दिखेगा, ये 15 दिख जाएगा मुझे डेट. तो लेट मी एंटर दिस फर्स्ट. नाउ आफ्टर एंटरिंग दिस यस, सो यहाँ पे आप देख सकते हो इस वाले जो कॉलम है, इसको लेट मी चेंज द फॉर्मेट्स इन द शॉर्ट डेट, आई डोंट नीड टाइम. तो अभी आप देखोगे कि यहाँ तक मुझे क्या दिख रहा है, इस बंदा डिस्चार्ज हुआ 14 को, 14 तक मुझे क्या चाहिए था, मेरा रिक्वायरमेंट इज की आई वांट द प्रीवियस एडमिशन डेट. तो 14 को एडमिशन हो रहा था, 1 को इसका एडमिशन हुआ था, 14 को डिस्चार्ज, तो आई एम गेटिंग दिस नंबर. ठीक है, दिस डेट. वैसे ही 15 तक एंड देन वैसे ही 28 तक है. तो आई एम एज्यूमिंग कि यू हैव अंडरस्टैंड द क्वेरीज एंड ऑल्सो यू हैव गॉट द answer, or you can say you have understand the earlier DAX, how earlier DAX works. ठीक है, तो according to the client requirement what I will do in instead of this admission date I will replace this new admission date here. ठीक है, तो
दिस एंड दिस, आई नीड दिस इन एडमिशन हायरार्की। तो अभी आप देख सकते हो कि जो मेरा एडमिशन डेट है वो हर एक कंडीशन पे है, चाहे उसका एक्शन कुछ भी रहा हो, जो उसका एक्चुअल एडमिशन डेट था वही एडमिशन डेट मुझे दिख रहा है, और एक तरह से बिल्कुल पर्टिकुलर हायरार्की यहाँ पे मेंटेन हो रही है। तो गाइज this is the end of our this videos, so thanks for watching this videos, we'll meet in next video, till the time thank you, bye bye।